ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام روشن ہے اور اب تک میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہمارے 2 پیارے سے بچے بھی تھے۔ میرے شوہر ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے جس کی آمدنی بہت کم تھی، لیکن اس سے بھی ہمارا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے ہمارے گھر میں بہت برکت عطا کی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ سب تمہاری شکر گزاری اور صبر کا صلہ ہے، جو اتنی کم آمدنی میں بھی ہم اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے تھے۔ لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ یہ میرا نہیں بلکہ میرے شوہر کا بخت تھا، جو ان کی تھوڑی کمائی میں بھی اتنی برکت تھی۔ میرے شوہر بہت نیک انسان تھے۔ محلے والے ان کی اس بات سے ان کی عزت کرتے کہ کیسے چھوٹی سی ملازمت سے بھی یہ سب پورا کرتے ہیں، لیکن مجھے اپنے شوہر کی حق حلال کی کمائی پر ہی یقین تھا کہ یہ سب ان کی سچی نیت کا صلہ ہے، جو انہیں پیسوں کے معاملے میں کوئی کمی یا دشواری کبھی پیش نہ آئی تھی۔ دراصل ہماری شادی جن حالات میں ہوئی تھی، تب تو ایسی خوشحال زندگی جینے کا ہم تصور تک نہ کر سکتے تھے۔ ہماری جان پہچان کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور میرے شوہر کالج کے وقت سے ہی مجھے پسند کرنے لگے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والے لڑکے تھے۔ مجھے ان کی پسندیدگی کا 2 سال تک کوئی علم نہ تھا، لیکن پھر مجھے اپنی ایک دوست سے پتہ چلا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور صرف ایک ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ جب میری دوست نے ان کا پیغام مجھے دیا، ان کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی دوست پر بھی بہت غصہ آیا تھا کہ وہ میری دوست ہو کر اس طرح کی بات مجھ تک کیسے پہنچا سکتی تھی، جبکہ ایسی باتیں ان دنوں کالج میں عام ہوا کرتی تھیں۔ تقریباً ہر لڑکا ہی کسی نہ کسی لڑکی پر فدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن میں کیونکہ بہت ہی اچھے گھرانے سے آئی تھی، ہمارا گھرانہ کافی مذہبی اور شریف تھا، مجھ پر بہت ساری پابندیاں بھی آئی تھی، اس لیے میں ایسی بات کے سخت خلاف تھی۔ بڑی مشکل سے تو مجھے لڑکوں کے ساتھ کالج میں پڑھنے کی اجازت ملی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے والدین کی عزت مجھے جان سے بھی بڑھ کر پیاری تھی، اور اس کے ساتھ ہمارا سٹیٹس ان سے بہت بڑا تھا۔ یہ بات بھی ان کی محبت کے آڑے آئی تھی کہ اگر میں قبول کر بھی لیتی اور یہ رشتہ لے کر آتے، تب بھی میرے گھر سے انکار ہی ہونا تھا۔ تقریباً تمام ہی باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ رشتہ ہر لحاظ سے بے جوڑ ہی ثابت ہوتا، لیکن پھر محبت میں کرشمے ہوتے سنے تو تھے، لیکن دیکھنے کا اتفاق خود پر ہی ہوا تھا۔ میرے 1000 بار انکار کرنے کے بعد بھی ان کے پیغامات مسلسل مل رہے تھے، جو کہ اب میرے لیے کسی فضول بات کی مانند تھے، اہمیت نہ رکھتے تھے۔ پھر ایک دن ان کا پیغام ملا کہ اگر اس دفعہ بھی بات کرنے کا موقع نہ دیا تو میری موت کی ذمہ دار آپ خود کو سمجھ لیجیے گا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ہنس کر یہ بات بھی مذاق میں اڑائی تھی، لیکن پھر حقیقت کچھ اس طرح سے سامنے آئی تھی کہ اس روز کے بعد کالج نہیں آئے تھے۔ مجھے ان کے آنے جانے سے کوئی مطلب نہ ہوتا تھا، لیکن پھر میری دوست نے مجھے بتایا تھا کہ 4 روز سے وہ لڑکا کالج میں نظر نہیں آیا۔ اس بات پر میرا دل زور سے دھڑکا تھا کہ کہیں سچ میں ہی انہوں نے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ مجھے ان کی محبت سے تو کوئی مطلب نہ تھا، لیکن کسی کی جان چلی جانے سے مجھے بہت فرق پڑتا تھا۔ اس لیے پھر میں نے کالج سے ہی ان کے گھر کا پتہ نکالا اور خود چل کر ان کے گھر تک پہنچی تھی۔ مجھے اس وقت ان کے اس فیصلے پر شدید غصہ آیا تھا، جب میں نے گھر پر موجود ان کی بوڑھی اماں کو اکیلے ان کی خدمت گزاری کرتے پایا تھا، کیونکہ انہوں نے سچ میں ہی ایسی حرکت کی تھی جس سے ان کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن پھر بہت تکلیف سے گزرے تھے۔ ان کے گھر آ کر میں نے ان کی طبیعت پوچھی اور پھر کچھ وقت ان کی ماں کے ساتھ گزارا۔ وہ خاتون بہت اچھی تھی۔ پھر انہوں نے شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا کسی کے عشق میں بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ لاکھ سمجھانے پر بھی میری ایک نہیں مانی اور اس لڑکی کی خاطر مجھے بے سہارا کرنے چلا تھا۔ مجھے کتنی حیرت ہوئی تھی کہ سچ میں کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے، لیکن پھر مجھے اس کی محبت کا احساس ہوا تھا، اور ان کی حالت دیکھ کر میں نے ان سے اپنی بے رخی کی معافی مانگی۔ اتنی تکلیف کی حالت میں بھی ان کو صرف میری ہی پرواہ تھی اور میری خاطرداری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے تسلی دی تھی کہ آپ اپنا خیال رکھیں، میں روز ہی ملنے آیا کروں گی۔ وہ میری اس بات پر کتنا خوش ہوئے تھے۔ پھر جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تھا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی محبت میں ان کے بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، تو وہ میری منتیں کرنے لگی تھی کہ میرے بیٹے کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اور واسطے دے کر کہا تھا کہ اسے مرنے نہیں دینا۔ مجھے اس لڑکے کی محبت پاگل پن کی حد تک دیکھ کر بہت ہی حیرانی ہوئی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت پر بھی مجھے ترس آ گیا جس کو صرف اس بیٹے کی فکر تھی۔ میں نے پھر ٹھیک ہونے تک اس لڑکے سے اچھی طرح سے بات چیت کرنا شروع کی تھی۔ اکثر گھر جا کر اس کی طبیعت پوچھ لیا کرتی تھی، اور پھر نہ جانے کب اس کی یہ تھوڑی بہت فکر میرے دل میں محبت بن کر پلنے لگی تھی۔ جب تک وہ مکمل ٹھیک ہوا تھا، میں بھی اسے چاہنے لگی تھی۔
اب मुझसे मिलना अगर उसकी मजबूरी थी तो मैं भी अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुकी थी। जब तक उससे ना मिलती, उसकी आवाज़ न सुन लेती, मेरा दिल बेचैन रहता था। मेरी इस बात पर अब मेरी कॉलेज की दोस्तें भी मुझ पर हंसती थी कि किस तरह मैंने उसको एक मुलाकात की खातिर इतना तड़पाया था और अब किस तरह मैं खुद चलकर उसके घर जाया करती थी। वो गरीब ज़रूर था, लेकिन बहुत वफा करने वाला लड़का था। मुझे उस पर और उसकी मोहब्बत पर अब पूरा यकीन हो चुका था। जहां अब उससे मिलना जुलना मुलाकातें बढ़ने लगी थी, वहीं मेरे दिल में ये डर भी था कि मेरे घर वाले उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अब मोहब्बत ने जुनून की हद तक मुझे अपने काबू में कर लिया था। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे घर वाले ना माने तो मैं मोहब्बत की खातिर बगावत भी कर डालूंगी। जैसे ही कॉलेज में दाखिल होती, मेरी नज़रें उसकी तलाश करती। वो जब तक नज़र न आता, ऐसा लगता कि मेरी जान अटकी रहती है। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मेरा दिन अच्छा गुजरता था। ऐसा लगता जिस मोहब्बत की शुरुआत उसने की थी, वो मोहब्बत मेरे दिल में अब उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन उसके साथ एक और ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिसने उसके साथ साथ मुझे भी बहुत गमज़दा कर दिया था। और वो वाक़या इसकी बूढ़ी माँ की मौत थी, जिसके बाद वो बिल्कुल टूट कर रह गया, क्योंकि इस भरी दुनिया में रिश्तों के नाम पर उसके पास सिर्फ माँ ही थी, जो अब नहीं रही थी। मुझे जैसे ही ये खबर मिली, मैं फ़ौरन उसके घर की तरफ भागी थी। मुझे अंदाज़ा था कि वो बिल्कुल टूट चुका होगा और ऐसे वक्त में मुझसे बढ़कर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं। मैं वहाँ पहुँची तो वो इसकी माँ की मौत का दूसरा दिन था और घर में वो अकेला मौजूद था। ना तो उसका कोई रिश्तेदार था और ना कोई ख़ानदान, बस वो दोनों माँ बेटा ही यहाँ रहा करते थे। मैंने जब भी उससे उसके ख़ानदान और रिश्तेदारों का पूछा था तो वो कहता कि मुझे माँ ने बताया कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, यहाँ तक कि उसको अपने वालिद का नाम तक पता नहीं था। फिर पता नहीं वो औरत इसकी सगी माँ थी या उसने सिर्फ इसको पाला था। ये सारी तफसीलात मैंने उससे पूछने का इरादा किया था, लेकिन अफसोस वो ये सब बताने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हुई थी। वैसे भी देखने में वो इस लड़के की माँ की उम्र की नहीं, बल्कि बहुत ही ज़ईफ़ खातून लगती थी, जैसे कोई दादी या नानी हो। और मेरी फ़िक्र की एक वजह यह थी कि बिना किसी ख़ानदान और हसब नसब के मेरे घर वाले इस लड़के यानी कि जैन को कबूल करने वाले नहीं थे। फिर भी अब मैं उसे छोड़ने का सोच नहीं सकती थी, इसलिए हमने फ़ैसला किया था अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे। और माँ की मौत के बाद कोई एक हफ़्ता वो बहुत रंजीदा रहा। फिर मैंने उसे अपने घर रिश्ता लाने का कहा। वो इस बात पर काफ़ी घबरा गया था। वजह उसकी गुर्बत, बेबसी और अकेलापन बना था। लेकिन वो जैसा भी था, मेरी अब दुनिया वो ही था। मैंने ठान ली थी कि घर वालों को मना कर ही दम लूँगी। इसके बगैर जीने का अब तसव्वुर भी मेरे बस में नहीं था। इसकी माँ का गम अभी ताज़ा था, लेकिन ये दुनिया थी, हमें फिर भी इस गम को साथ लेकर ही जीना था और आगे बढ़ना ही था। इसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की थी मेरे घर तक आने की, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर में इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। मैं जानती थी अगर घर वालों को इस बात की भिनक भी लग गई कि मैं कॉलेज में किसी लड़के को पसंद करती हूँ, तो मेरा कॉलेज जाना तो क्या, घर से निकलना तक बंद हो जाना था। इसलिए मैं एक मौका जैन को और अपने घर वालों को देना चाहती थी कि ये लोग आपस में मिल लें, फिर चाहे नतीजा जो भी निकले, इसके बाद का फैसला मुझे ही करना था। वो इतवार का दिन था। बाबा उस दिन घर पर ही मौजूद थे। मेरे छोटे बहन भाई सभी अपने स्कूल वगैरह से फारिग, तकरीबन हमारी तमाम फैमिली एक साथ मौजूद थी, जिसमें अम्मी, अब्बू, मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन, एक छोटा भाई था। जब मैंने जैन को आने का कहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसके साथ ही मेरा दिल भी धड़का था कि ये वो वक्त था जिसका नतीजा मैं पहले से ही खूब अच्छी तरह जानती थी। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी तरह ही जैन भी काफ़ी घबराहट का शिकार था। उसने एक के बाद 2-3 बार घंटी बहुत जल्दी बजाई, जिस पर हमारे तमाम फैमिली मेम्बर्स का ध्यान दरवाजे पर गया कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई जो डोरबेल बजाने वाले ने 2 मिनट तक का इंतज़ार न किया। फिर मेरे बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला और सामने एक अनजान लड़के को देखकर वो हैरानी से उसे देखने लगा था। जैन ने अब्बा की मौजूदगी का पूछकर अंदर आने की इजाज़त चाही और फिर मेरा भाई उसे अंदर लेकर आया। मैंने पहली नज़र पड़ते ही उसे बगौर सर से पाँव तक देखा था। वो आज काफ़ी अच्छे हुलिये में बनकर आया। अब्बा ने देखते ही हैरानी का इजहार किया था और भाई से इसके मुतल्लिक पूछा था कि ये कौन है। तब मैंने ही आगे बढ़कर अब्बा को बताया कि ये जैन है और मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। अब्बा को मेरी इस जुर्रत पर काफ़ी गुस्सा तो आया था, लेकिन अब मुझे पता था कि मुझे जैन का ही साथ देना है। फिर मेरे बोलने पर उसे भी कुछ हिम्मत मिली थी। तब तक मेरी माँ ने भी उसे गौर से देखा था और बैठने का कहा था।
जैन बैठते ही अब्बा से बोला था कि सर, मैं जानता हूँ आपके सामने मुझे खुद से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। एक ही माँ थी जिसका भी गुजरे हफ्ते इंतकाल हुआ है, इसलिए मुझे ये जुर्रत करनी ही पड़ी कि मैं आपसे आपकी बेटी रोशन का हाथ मांगने आया हूँ। दरअसल हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अब्बा की गज़बनाक नज़रों का मरकज़ मैं बनी थी, जिनका सवालिया अंदाज देखकर मैंने हाँ में सर हिलाया। और अब तक की होने वाली इस गुफ्तगू से मेरे घर के तमाम अफराद में एक बेचैनी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह अब अब्बा का होने वाला रद्द अमल सोचकर सबके दिलों में पैदा होने वाला डर था। अब्बा ने जैन से मुखातिब होते फ़कत उसे जाने का ही कहा था और बोले थे कि आपने अपनी बात कह दी, अब आप जा सकते हैं। लेकिन मैं उनके अंदाज से उनका इनकार जान चुकी थी, इसलिए अब जैन का साथ देना मेरा फ़र्ज़ बनता था। मैंने अब्बा से कहा था कि अब्बा, जैन यहाँ तक मेरी ही रजामंदी से आया है, क्योंकि हम दोनों शादी आपकी ही मर्ज़ी से करना चाहते हैं। तो अब्बा ने आगे बढ़कर मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और बोले थे कि अब जान ली मेरी मर्ज़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लावारिस शख्स को मेरे घर तक लाने की। जैन को अब्बा की इस बात पर शदीद गुस्सा आया था, लेकिन वो मेरी तरफ देखते चुप का घूंट पी गया। अब्बा ने एक बार फिर उसे घर से निकल जाने का कहा था, तो वो एक पल भी न रुका और जल्दी से बाहर चला गया। इसके रवाना होते ही मुझ पर क़यामत टूटी थी। इस बार अब्बा से पहले अम्मा ने मुझे ज़ोर से मारा था। अब्बा अब बिल्कुल खामोश हो चुके थे। उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ भी ना बोला, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनसे बात करके उन्हें मनाना चाहती थी कि जैन का लावारिस होना उसका कोई गुनाह नहीं था। लेकिन मेरी एक बात पर भी किसी ने कोई रद्द अमल नहीं किया और अम्मा ने अब्बा का फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर तुम मर भी जाए तो हम लोग कभी इसकी शादी पर रजामंद नहीं होंगे। अपनी तरफ से 1000 कोशिश के बाद अब मैंने भी चुप का दामन पकड़ लिया था और सोच लिया था कि किसी एक से तो मुझे वफा करनी थी। और फिर मेरे दिल ने वफादारी का हर इशारा जैन की तरफ किया था। मेरी चुप से घर वालों ने समझा था कि मैंने उनका फैसला कबूल करके सब्र किया था, लेकिन मुझे इंतज़ार था सही वक्त का। और रात के पिछले पहर मुझे वो सही वक्त मिला था जब मेरे सारे घर वाले अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे थे और मैंने रात जैन की तकलीफ महसूस करते हुए कांटों पर गुजारी थी। मैंने उसकी तरफ जाने का फैसला किया था और इसके घर की कोई भी चीज़ लेकर जाना मैं नहीं चाहती थी, इसलिए यहाँ से एक जोड़ा तक ना उठाया। मैं खाली हाथ उठकर रवाना हुई थी। जैन का घर यहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी मुझे पैदल ही जाना था। मैं किसी को इसका सुराग तक न देना चाहती थी। बहुत दूर तक चलने के बाद मैं फजर के करीब थक कर वहाँ पहुँची थी। दरवाज़ा खटखटाने पर जैन ने ऐसे फ़ौरन दरवाज़ा खोला जैसे वो भी पूरी रात न सोया था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में चमक आई थी और उसने कहा, मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था। मैंने पूछा कि तुम्हें मालूम था कि मैं आऊँगी? तो उसने कहा था कि तुम्हारी मोहब्बत पर इतना तो यकीन था कि इस हाल में तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। फिर उसने कहा था कि अब हमें ये घर भी छोड़ना होगा, क्योंकि सुबह होते ही तुम्हारे घर वाले पहले पता मालूम करके मेरे घर ही पहुंचेंगे। इसलिए हमने बिना देर किए वहां से निकलना बेहतर समझा था और हम दोनों ने एक अनजान राह पर चलते कहीं दूर जाने वाली गाड़ी पकड़ी थी और अगले दिन दूसरे शहर में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। इस शुरुआती वक्त में हमें बड़ी तकलीफ़ें देखनी पड़ी। बड़ी मुश्किल दिनों से हम गुजरे थे। कई बार हिम्मत जवाब दे जाती थी, लेकिन जैन ने मेहनत मजदूरी में दिन रात एक कर दिया। सबसे पहले हमने कोर्ट में निकाह किया था और फिर दुख सुख का सारा वक्त एक दूसरे का साथ देते सहारा बने थे। जैन सच में एक जादुई लड़का साबित हुआ था। 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में उसने एक अच्छी जगह नौकरी हासिल की थी और किराए का मकान मुझे दिलवाया था। अब हमारी ज़िंदगी एक राह पर चल पड़ी थी जहाँ एक दूसरे का सुख दुख ही हमारा मकसद था। कई बार अकेले बैठे बैठे मुझे घर वालों की याद सताती थी, लेकिन वापसी का अब कोई रास्ता न था। मैं पीछे की सारी कश्तियाँ जला कर आई थी। वहाँ लौटने का मतलब अब बस मौत था। कभी कभी ख्याल आता कि घर वालों ने मुझे कितना ढूंढा होगा। मेरी माँ बहन का मेरे बगैर न जाने क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जैन ने फिर मुझे संभाला और ऐसी बातें सोचने से रोका था। फिर 1 साल होने को आया था जब मुझे उम्मीद से होने की खुशखबरी मिली और जैन तो ये सुनकर खुशी में फूला न समाया था। यहाँ तक कि मेरे यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई थी, लेकिन जैन ने अब तक मुझे फूलों की सेज पर बिठाया हुआ था। शादी को इतना अरसा गुजरने के बावजूद उसकी मोहब्बत में कोई ज़रा बराबर भी कमी न आई थी। ऐसा लगता था हर गुजरते दिन के साथ साथ हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ती गई थी। मुझे आज भी अपने जैन के साथ शादी करने के फैसले पर बहुत मान था कि अपने लिए इतना चाहने वाला साथी मैंने सबके खिलाफ जाकर चुना था। हमारी ज़िंदगी में एक शहजादी के आने से बहुत बरकत भी आई थी। जैन की नौकरी में प्रमोशन हुई थी और अब हमने अपना घर भी बना लिया था। यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मेरे शौहर ने बनवा कर दी थी।
ये सारे का सारा घर अब मेरा था। बेटी की परवरिश करते करते कैसे दिन रात गुजरते मुझे कुछ पता न चलता था। ये जब 6 माह की हुई थी तो एक बार फिर मुझे उम्मीद से होने की खुशखबरी मिली, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल घबराया था कि मैं अकेली कैसे 2 छोटे बच्चों को संभालूंगी। लेकिन जैन ने मेरी इस परेशानी पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। उसने कहा था कि मैं ज़िंदगी भर अपने सगे रिश्तों के लिए तरसा हूँ। ना मेरा कोई ख़ानदान था, ना कोई अपना। अब अगर किस्मत की मेहरबानी हुई है, मुझे औलाद मिल रही है, तो तुम क्यों इस बात की फ़िक्र करती हो कि तुम अकेली हो? मैं अपने बच्चों को खुद संभालूंगा। अगर तुम ना संभाल सकी तो। मुझे इसकी इस बात पर भी बहुत प्यार आया था। फिर मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था कि जिसने बच्चे दिए हैं वो संभालने की हिम्मत भी देगा। जैन सुबह ऑफिस चला जाता। शहजादी को मैं झूले में डालकर खाना पकाने लगती तो कभी कपड़े सुखाने छत पर चली जाती। मेरी बेटी अभी 6 माह की थी और इतनी छोटी थी कि खुद से चलकर कहीं जा नहीं सकती थी। एक दफ़ा मैं उसको झूले में डालकर छत पर गई थी। वापस आकर देखा तो वो स्टोर रूम के दरवाजे के पास बैठे हंस रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई, इतनी छोटी बच्ची कैसे झूले से खुद निकल सकती है, और अगर गिरी होती तो कम से कम रोने की आवाज़ तो मुझे आती ना। मैं किसी एक नतीजे पर ना पहुंच सकी, और शाम को ये बात जब जैन को बताई थी तो वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान हुआ था। दरअसल हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था और मैं अभी तक स्टोर रूम में नहीं गई थी, ना ही वहाँ कोई सामान रखा था, क्योंकि मेरा दूसरा हमल था और तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। इस हालत में फिर मुझसे घर की ज़्यादा जोड़ तोड़ ना हो पाती थी। जैन ने खुद ही कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें स्टोर रूम में रखी थी और फिर स्टोर रूम को ताला लगाकर मुझे इधर जाने से मना किया था और बच्ची को भी इस तरह खेलने से मना किया था। मुझे उसकी बात समझ न आई थी। वो हमारे मामले में इतना हसास था कि एक बार बच्ची इस तरफ क्या चली गई, उसने तो पाबंदी ही लगा दी थी। लेकिन फिर मैंने उसकी बात को ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया था। मुझे दूसरे बच्चे के आने की जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, तो मैं उसके लिए शॉपिंग करती, कभी कोई चीज़ बनाती तो कभी कोई और। घर को पूरा सेट करना मैंने डिलीवरी के बाद सोचा था। अकेले रहने की भी अलग ही तकलीफ थी, लेकिन जैन और उसकी मोहब्बत की खातिर मैंने हर तकलीफ को सहने का पक्का इरादा किया था, जिस पर अभी मैं कायम थी। बस कभी कभी ख्याल आता था कि काश हमारी शादी होने तक जैन की माँ जिंदा रहती, कम से कम मैं उनसे बच्चे संभालने का कोई गुर ही सीख लेती। अब तो हर जिम्मेदारी मुझे अकेले निभानी थी, क्योंकि अपने घर से भी सारे वास्ते मैं ख़त्म कराई थी। वरना ऐसी हालत में माँ की ज़रूरत एक लड़की को सबसे ज़्यादा महसूस होती है। मेरे हमल के महीने खैर से गुजरे थे। मेरी बेटी ने भी अब कदम उठाना शुरू किया था। इसको संभालने की कुछ जिम्मेदारी हल्की हुई थी। फिर खैर से हमारे घर बेटी के बाद एक प्यारे से बेटे की पैदाइश हुई। इस बच्चे की बारी तो जैन ने खुशियाँ मनाने की हद कर दी थी। इस नए मोहल्ले में भी जानने वाले और अनजान सब लोगों में खुद जाकर मिठाई बांटी थी और मेरी खिदमत किसी औरत, माँ या सास से भी बढ़कर करने लगा था। मेरी डिलीवरी के बाद उसने कई रोज़ तक मुलाजमत से छुट्टी ली थी और लगातार मेरी खिदमत करता। मुझे अपने हाथ से तरह तरह की चीज़ें बना बना कर खिलाता। मैं मना करती तो कहता जल्दी से सेहतयाब हो जाओ, तुम मेरे बच्चों की माँ हो। कभी कहता कि तुम मेरी मालिक हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे कभी उसकी बातों पर हंसी आती तो कभी हैरत होती कि कोई इतना किसी को कैसे चाह सकता है। मेरे बच्चे की पैदाइश को 40 दिन होने वाले थे। घर के सारे काम मैंने अब खुद संभालने शुरू किए थे। कई बार मैंने जैन से स्टोर रूम की चाबियाँ पूछी थी। मुझे काफ़ी सारा सामान वहाँ रखना था, लेकिन हर बार जैन ने मुझे स्टोर रूम में मज़ीद सामान रखने से मना किया और ना ही चाबियाँ दी थी। मैं हर बार ही पूछ कर रह जाती, लेकिन उसने कभी मेरे सामने स्टोर रूम न खोला था। मुझे तजस्सुस हमेशा ही इस बात पर रहता था, लेकिन फिर 2 बच्चों की जिम्मेदारियों में मैं यूँ मसरूफ़ हो जाती कि इस तरफ ध्यान ही न जाता था। कुछ दिन हुए थे हमारे घर के करीब कुछ मुसाफिरों ने झुग्गियाँ बनाई थीं। आसपास काफ़ी शोर रहता था। मैं तो ज़्यादा बाहर न जाती थी, लेकिन जैन ने बताया था कि किसी गांव से सैलाब मुतासरीन को लाकर हुकूमत ने यहाँ आबाद किया था। वो लोग बेचारे आफत के मारे थे। इनकी तकलीफ़ का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन जैन ने बाहर जाने और किसी को भी घर बुलाने से सख्ती से मना किया था कि कई लोग ऐसे हालात में अपनी ज़रूरियात के लिए गलत और सही का फ़र्क भी भूल जाते हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं अब दिन में भी दरवाज़ा बंद रखती थी। खासकर जैन ने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहा था। एक रात जैन और मेरी बेटी दोनों सो चुके थे। बेटे को दूध पिलाने के लिए मैं उठकर बैठी थी कि आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने 2 बार जैन को आवाज़ दी थी, लेकिन दिन भर की थकान की वजह से वो बहुत गहरी नींद सो चुका था। दस्तक देने वाले ने अब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया था।
मुझे बड़ा तरस आया था कि जाने कौन ज़रूरतमंद इस वक्त आया होगा। मैंने खुद ही दरवाजे पर जाकर देखा था तो एक औरत काफ़ी मजबूर हालत में पनाह मांग रही थी। मुझे उस पर तरस तो बहुत आया, लेकिन अब बात घर में रखने की थी तो जैन से पूछे बिना मैं कोई फैसला न कर सकती थी, क्योंकि इसने पहले ही मुझे इस बात से रोका था। मैंने अंदर जाकर जैन को जगाया और उसको दरवाजे पर आई इस मजबूर औरत के बारे में बताया तो वो भी उठकर बाहर आ गया। फिर इस औरत ने जैन को बताया कि मैं इन सलाम मुतासरीन के साथ अपने गांव छोड़ कर आई हूँ, लेकिन मेरे साथ अपने ख़ानदान का कोई भी फ़र्द नहीं आया। मुझे नहीं पता मेरे ख़ानदान वाले ज़िंदा भी होंगे या नहीं, और अगर हैं भी तो कहाँ पर हैं। मेरी तरह जैन को भी उस पर तरस आया और उसने मुझे इस औरत को घर में पनाह देने को कहा। मैं उसे अंदर लेकर आई थी। पहले खाने का पूछा था और फिर उसे एक अलग कमरे में सोने के लिए छोड़कर मैं अपने बच्चों और शोहर के पास सोने चली गई थी। सुबह हमें उठते बहुत देर हो गई थी, क्योंकि रात बच्चे के साथ और इस औरत के लिए भी जागी थी। लेकिन सुबह उठकर देखा तो पूरे घर की सफाई इस औरत ने कर दी थी। किचन में सारे बर्तन धोकर उसने सेट कर दिए थे। इतना साफ सुथरा और समेटा हुआ घर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इन दिनों मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी। इस औरत ने मेरा एहसान मानते हुए कहा था कि शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए, आपने मुझे पनाह दी है। और फिर वो हमारे साथ ही रहने लगी थी। इसके आने से मुझे बहुत आराम मिला था। वो हर काम बहुत जल्दी कर दिया करती, यहाँ तक कि खाना भी पकाती। जैन भी मेरी मदद होती देखकर कोई इतराज़ न करते। इस औरत को हमारे घर 1 महीना होने को आया था और अब तक वो बिल्कुल घर का एक फ़र्द बन गई थी। वो गांव से आई थी तो बहुत ज़्यादा चालाक नहीं थी, बस अपने काम से काम रखती और ज़्यादा घर की ही चीज़ों में मसरूफ़ रहा करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी कुछ माह ये यहीं रहे। मैंने पहले बच्चे के वक्त तो अकेले वक्त गुजारा था, लेकिन अब 2 बच्चों के होते मैं बहुत थक जाती थी। ऐसे में अगर वो काम कर लेती तो अपने बच्चे में आराम से संभाल लेती थी। और तो और मेरी बेटी शहजादी भी उसके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। मैं बहुत बेफिक्र हो गई थी। एक दोपहर में ज़रा मेरी आंख लग गई। शहजादी को मैंने उसके हवाले किया था, वो उससे बहला रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो वो औरत परेशान हाल मेरे करीब ही खड़ी थी। उसको इस तरह परेशान होता देखकर मुझे पहले अपनी बेटी का ख्याल आया था। मैं फ़ौरन शहजादी का पूछा तो उसने मेरी बेटी को मेरे पास बिठाते हुए बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके चेहरे का रंग देखकर मैंने परेशानी की वजह पूछी थी। इस औरत ने फिर बताया कि शहजादी खेलते खेलते स्टोर रूम की तरफ गई थी। फिर मैंने जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि आप लोग तो इतने शर्मनाक तरीके से हराम पैसे कमाते हो। मुझे माफ़ कर दो बाजी, मैं आपके घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती जहाँ इस तरह की हरकतें होती हों। मैं हैरान हो गई कि वो औरत आखिर क्या कहना चाहती थी। मैंने उसे जाने से तो ना रोका, लेकिन ये ज़रूर पूछा कि तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो। तो उसने कहा कि अगर यकीन नहीं तो स्टोर रूम में जाकर खुद देख लो। मुझे इस औरत पर बहुत गुस्सा आया और मैंने फिर उससे घर से ही निकाल दिया। लेकिन स्टोर रूम के बारे में अब मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा था, क्योंकि ये बात भी सच थी कि किसी न किसी बहाने से जैन ने भी हमेशा मुझे वहाँ जाने से रोका था। लेकिन फिर घर में अकेली होने की वजह से दोनों बच्चे साथ थे तो मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा नहीं खोला। शाम को जैन जब वापस आया था तो उसने इस औरत के बारे में पूछा। मैंने झूठ बोला कि इसके घर वाले मिल गए हैं और इनके साथ चली गई, लेकिन इसकी कही हुई बात मैंने जैन से छुपाई थी, क्योंकि इसकी मैं खुद तस्दीक करना चाहती थी। मैंने जैन से स्टोर रूम की चाबी मांगी तो वो हमेशा की तरह टाल मटोल करने लग गया। फिर मेरा शक मज़ीद बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि रात हो चुकी थी। मेरा शौहर और दोनों बच्चे सो चुके थे, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। फिर मैंने जाके स्टोर रूम में इसी दरवाजे के सुराख से झांका तो मेरे ऊपर भी क़यामत टूट पड़ी। अंदर का मंजर तो किसी डरावने ड्रामे का मंजर पेश कर रहा था, जहाँ हल्की लाल रंग की रोशनी में तरह तरह के काले जादू के सामान बिखरे नजर आ रहे थे। मुझे बहुत हैरानी हुई, हमारे घर में ऐसे कौन कर सकता था। फिर जाहिर है मेरा शक जैन की तरफ ही गया, क्योंकि सारे हालात उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। रात का वक्त था, मुझे डर भी लग रहा था और मैं बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन अब हिम्मत करनी थी। मैं ज़ोर ज़ोर से धक्के मारकर स्टोर रूम का दरवाज़ा तोड़ने लगी। दरवाज़ा पुराना होने की वजह से चंद बार धक्का मारने से ही इसकी कुंडी टूट चुकी थी। फिर मैंने अंदर जाकर जो मंजर देखा तो उसने शुरू से लेकर आज तक की सारी हकीकत मेरे सामने खोल दी। स्टोर रूम का दरवाज़ा भले ही बाहर से बहुत छोटा मालूम होता था, लेकिन ये जगह बहुत अंदर तक गहरी थी, जैसे ख़ास इसी काम के लिए उसे बनाया गया हो। यहाँ मौजूद सारे का सारा सामान यहाँ पर होने वाले गलीज़ अमल का पता दे रहा था। ढेर सारी राख, बहुत सारे बनताले और इंसानी शक्ल नुमा पुतलों के यहाँ बहुत बड़े ढेर लगे हुए थे। पीपल के पत्ते और उनमें चुभी हुई सुइयाँ देखकर दिल लरस जाता था। फिर एक तरफ पड़े बहुत सारे कागज़ों पर मेरा ध्यान गया तो मैंने करीब जाकर इन पर लिखी हुई इबारतें पढ़ना शुरू की।
शायद यही वो कागज़ थे जिन पर काला जादू करने के बाद अपनी ख्वाहिशात लिखती जाती थी, तो वो होकर रहता था। इन कागजात पर मेरा नाम बहुत दफ़ा तहरीर किया गया था, जो देखकर अब मेरी हिम्मत टूटने लगी थी और खौफ के मारे मैं बाहर चले आई। जैसे तैसे करके मैंने स्टोर रूम की कुंडी जोड़ दी थी और फिर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई, जहाँ जैन बहुत सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन मेरी आंख इस रात एक पल के लिए भी न लगी। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह नाश्ते के बाद जब जैन ऑफिस चला गया तो एक बार फिर मैं स्टोर रूम में आ गई थी और अब दिन के उजाले में सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। इन कागजात पर मेरे नाम के साथ वो सारे मतलब लिखे हुए थे जो आज तक जैन ने अपनी मर्जी से काले जादू के जोर पर पूरे किए थे। यानी कॉलेज के वक्त से लेकर अब तक मुझे अपनी मोहब्बत में फंसाना, फिर घर वालों और अपने वालिदैन के खिलाफ करना, घर से भागना, शादी के बाद सिर्फ जैन के साथ ही खुश रहना और सारी दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म कर देना, जैन के सामने हमेशा ज़ुबान बंद रखना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना और इतनी छोटी मुलाजमत में भी जैन के पास ढेर सारा पैसा होना। ये सब मेरी अपनी मोहब्बत नहीं बल्कि इसका किया हुआ काला जादू था, जिसने आज तक मुझे एक पुतले की मानिंद चलाया था और मेरे होशो हवास पर इसका काबू था। मैंने बाहर जाकर फ़ौरन पानी की बाल्टी भरी और इन सब सामान पर पानी डाला। एक के बाद एक बाल्टी डालकर मैंने जैन की सारी मेहनत और करतूतों पर पानी फेर दिया था और फिर मेरा भी होश ठिकाने आने लगा। जैन की मोहब्बत अब मेरे दिल में नफ़रत का रूप लेने लगी थी। मैंने उसके आने से पहले अपने दोनों बच्चे उठाए और जल्दी से अपने वालिदैन के शहर जाने के लिए गाड़ी पकड़ी। वैसे भी जैन ने शाम को घर आना था, तब तक मैं उसकी पहुंच से दूर निकल जाऊंगी। अपने घर आकर जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया था तो मुझे देखते ही इन लोगों ने पहचानने से भी इनकार किया था। लेकिन फिर मेरी गोद में 2 बच्चे रोते हुए देखकर अम्मा को मुझ पर तरस आया था। लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरी बगावत का सदमा न सहते हुए मेरे बाबा की इन्हीं दिनों मौत हुई थी जब मैंने घर छोड़ा था। मैं कितनी बेबस थी कि अपनी मजबूरी भी इन लोगों को ना समझा सकती थी कि मुझ पर तो काला जादू हुआ था। लेकिन फिर ज़िंदगी ने आखिर सब्र करना सिखा ही दिया। मेरे भाई बहन अपनी अपनी ज़िंदगियों को आबाद कर चुके थे। फिर मैंने अम्मा के साथ ये शहर भी छोड़कर अलग जगह रिहाइश इख्तियार की थी, जहाँ जैन का साया भी मुझ तक ना पहुँच सकता था। यकीनन उसने मुझे बहुत ढूंढा होगा, लेकिन फिर तकरीबन 2 साल बाद मुझ पर वैसे असरात पड़ना फिर शुरू हुए थे। जैन की मोहब्बत का गलबा फिर मेरे दिल में बढ़ने लगा था, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि उसने अपने गलीज़ अमल फिर से शुरू किए थे। तो मैंने अब खुद पर रूहानी अमल और कुरान से हिसार करवाया था। अब इसका हर अमल बेकार था और मैं अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करने लगी थी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।